لہٰذا آپ تمامی حضرات ایسی پاکیزہ محفلوں کی عظمت کو ضائع نہ کریں، آ کر کے پیار محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ یاد رکھیں ایسی محفلوں میں جب تک آپ ادب و احترام کے ساتھ نہیں بیٹھو گے تب تک آپ کو آقا حسین کا فیض و کرم جو ملنا چاہیے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ صرف جلسے کی لائٹنگ دیکھنے سے اگر آپ سوچتے ہو کہ ہمیں امام پاک کی برکتیں مل جائیں تو آپ کو برکتیں نہیں مل سکتی ہیں۔ آپ قمقمے دیکھ کر کے اگر سوچتے ہو کہ امام پاک کی برکتیں ہمیں مل جائیں تو آپ کو قطعاً امام پاک کی برکتیں نہیں ملنے والی ہیں۔ آپ اگر امام عالی مقام کی محفل میں آئے ہو تو مکمل طور سے جسمانی اور روحانی طور پر یہاں موجود رہو۔ آپ کا جسم بھی یہی ہو اور آپ کی روح بھی یہی ہو۔ آپ مکمل طور سے یہاں پہ بیٹھ کر کے اور ذکر شہدائے کرب و بلا کو سماعت کریں، تب اس کی برکتیں آپ تمامی حضرات کو ملے گی۔ اور جتنے نوجوان حضرات ہیں جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمامی حضرات آ کر کے محفل میں تشریف رکھیں، اس لیے کہ آپ نے جن کو بلایا ہے سب آپ کے مہمان ہیں، ہے نا؟ چاہے شورائے کرام ہوں، چاہے خطبائے کرام ہوں، چاہے آپ کے علاقے کے لوگ ہوں، چاہے باہر کے لوگ ہوں، جتنے لوگ ہیں سب آپ کے مہمان ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آ کر کے پنڈال گاہ میں تشریف رکھیں اور سب کو محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ ابھی مجھ سے پیشتر آپ تمامی حضرات نے نعت خوان حبیب داور جناب صدام راہی بستوی صاحب سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے، دل باغ باغ ہو گیا۔ اس سے پیشتر جناب غلام مرتضی مسعودی صاحب سے آپ نے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے، دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ ان حضرات کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور انہیں خلوص و للہیت کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت رسول کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ مولا نعت خوانی اور منقبت خوانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ نقیب اہل سنت حضرت علامہ رفیق صاحب قبلہ فیضی جو بڑی شاندار منقبت فرما رہے ہیں اور ایک بہت بڑی مصیبت میں اس وقت یہ مبتلا ہیں، مگر ان کا حوصلہ دیکھ کر کے یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ان کے والد گرامی کی طبیعت خراب ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے والد ماجد کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، مولا انہیں شفائی کلی بدائمی عطا فرمائے اور یہ مکمل طور سے وہ صحت یاب ہو جائیں تاکہ مکمل ذہن و فکر کی حاضری کے ساتھ ان کا جو کام ہے یہ کرتے رہیں۔ اسٹیج پہ اس وقت علماء اہل سنت کا ایک عظیم الشان قافلہ جلوہ گر ہے۔ محب مکرم حضرت علامہ حیدر علی صاحب قبلہ، حضرت علامہ افروز صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مقصود رضا صاحب قبلہ فیضی، علامہ رئیس صاحب قبلہ جامعی، حضرت ماسٹر مظہر صاحب اور جناب مولانا زاہد صاحب قبلہ، اور اس کے علاوہ جناب عتیق الرحمن صاحب اور مولانا عبد الرحیم صاحب، میرے خیال سے صوفی لقمان صاحب قبلہ، قاری ابرار صاحب قبلہ اور تمامی حضرات تشریف فرما ہیں۔ اور آپ کے محبوب ادارہ دارالعلوم اہل سنت نور العلوم بریلی کے پرنسپل حضرت قاری معین الدین صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور میرے خیال سے اگر میرا کسی کا نام چھوٹ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں؟ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ اور آپ تو الحمدللہ اس حسین کی محفل میں تشریف فرما ہو جس حسین نے کربلا کے میدان میں، میں کہتا ہوں کہ اگر جسمانی طاقت دکھاتی ہوتی صحیح معنوں میں تو ایک بھی یزیدی کربلا کے میدان سے بچ کر کے نہیں جاتا۔ حسین نے اگر روحانی پاور دکھا دیا ہوتا تب تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کربلا کے میدان سے بچ کے جاتا۔ تو کربلا کے میدان میں آقا حسین نے نہ تو صحیح معنوں میں جسمانی پاور کا استعمال کیا ہے نہ روحانی پاور کا استعمال کیا ہے، ہاں کچھ استعمال کیا ہے تاکہ یزیدی یہ نہ سمجھے، یزیدیوں کے ذہن و فکر میں یہ بات نہ ہے کہ حسین نے 3 دن سے کھانا پانی نہیں کھایا ہے، دانا پانی نہیں ملا ہے تو حسین جسمانی اعتبار سے کمزور ہو گئے ہیں۔ اور یزید
बताऊं, आपने सुना होगा करबला के मैदान में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब जंग की इब्तिदा होती है, जब जंग की इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है, तो पहले जो जंगें लड़ी जाती थी, तो जंग के मैदान में जब खेमे जो नस्ब किए जाते थे, उस खेमे के ऊपर खंदक खोद दिया जाता है और खंदक खोद करके उसमें आग जला दी जाती है। आग जलाने का मकसद ये हुआ करता है ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। करबला के मैदान में एक यजीदी जो नापाक ज़हनियत का मालिक था, वो आकर के इमाम पाक के सामने आता है और कहता है, ए हुसैन, जहन्नम की आग से पहले पहले तुमने दुनिया में आग लगा ली, माज़ल्लाह। यानी उस जालिम के कहने का मतलब ये था कि हुसैन तुमको जहन्नम में जाना है, माज़ल्लाह। मेरे हुसैन तो वो है कि उनके नाना जान ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सज्जदा शबाब अहलिल जन्नह। हुसैन मेरे दोनों से सिर्फ जन्नती ही नहीं, जन्नती जवानों के सरदार है। बताओ, हुसैन के जहन्नम में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे मेरे हुसैन तो ऐसे जन्नती है कि जन्नत हम जैसे गुनहगारों को जन्नत अता फरमाएंगे, जन्नत बांटेंगे, जन्नत तकसीम करेंगे। तो जहन्नम में हुसैन के जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वो बदतीनत था, बदकिरदार था, नापाक था, नाहंचार था, बेवकार था, ज़लीलो ख़ैर था, हुसैन पाक से कहता है, हुसैन तुमने दुनिया जहन्नम के आग से पहले पहले दुनिया ही में आग लगा ली। मेरे आका हुसैन को उसका ये जुमला बहुत नापसंद गुजरता है। आपकी तबीयत मुज़बहिर हो जाती है और उसके बाद आप फरमाते हैं, जालिम तू क्या चाहता है, तू क्या कहना चाहता है, क्या हुसैन जहन्नम में जाएगा? अल्लाहू अकबर। और उसके बाद आपने अपने हाथ को उठा करके रब की बारगाह में दुआ मांगी, ए मौला इसको जहन्नम के अज़ाब से पहले पहले दुनिया के अज़ाब में मुब्तला फरमा दे। फरमाते हैं, मौला इसको जहन्नम के अज़ाब से पहले पहले दुनिया के अज़ाब में मुब्तला कर दे। अब आका हुसैन का रूहानी पावर देखो, इतना आपने फरमाया था कि वो अपने घोड़े पे सवार होता है और घोड़े पे सवार होकर के जैसे ही वो चलता है तो वो घोड़े से गिरता है और अपने घोड़े की रकाब में उलझ जाता है और उलझने के बाद वो उसका घोड़ा उसको फंसा करके ले जाता है और उसी गड्ढे में डाल दिया करता है जहां पे आग जल रही थी। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआएं हिलाकत से वो तबाह बर्बाद हो जाता है। इमाम पाक अपने दस्ते मुकद्दस को अल्लाह की बारगाह में उठा करके दुआ करते हैं, ए मौला तेरा एहसान है कि तूने अहले बैते नबूवत के बदखाह को सजा अता फरमाई। तब तक एक जालिम इमाम आली मकाम के सामने आता है और कहता है, ए हुसैन आपको अहले बैत से क्या निस्बत है? यानी उस जालिम का कहना यह था कि आप रसूल की औलाद नहीं हो, आप औलादे नबी नहीं हो। इमाम पाक को उसका यह जुमला सख्त नागवार गुजरता है। आपने अपने हाथ को उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मौला इसको जिल्लत और रुसवाई की मौत अता फरमा। इतना फरमाना था कि वो जालिम क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है और जैसे ही वो बैठता है एक बिच्छू उसके पास आता है और उसको टक मार देता है। ऐसा टक मारता है कि वो नजासत में तड़प तड़प करके मर जाता है, नजासत में तड़प करके मर जाता है। एक जालिम आता है हुसैन पाक के मुकाबले में और कहता है, ए हुसैन देख रहे हो नहरे फुरात का पानी कैसे मौजे मार रहा है, नहरे फुरात कैसे बह रहा है, मगर हुसैन याद रखो इसमें से तुमको एक कतरा पानी नहीं दिया जाएगा। इमाम आली मकाम अपने हाथ को उठा करके दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अमितहु वब्शादन, ए अल्लाह हुसैन, ए अल्लाह इस जालिम को तो प्यासा मार। इतना कहना था कि वो अपने घोड़े पे सवार होता है, घोड़े से गिरता है, घोड़े की रकाब में उलझ जाता है, प्यास प्यास चिल्लाता रहता है और प्यास प्यास चिल्लाते चिल्लाते मर जाता है। गोया इमाम पाक को
जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने शहीद आजम, ताजदारे करबला, फैजाने करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। आज लोग कहते हैं कि आका हुसैन के नाना अगर मुख्तार थे तो हुसैन को करबला में बचाया क्यों नहीं? बोलो, ये जुमला आपने सुना है कि नहीं सुना? आपने सुना होगा कि आज बहुत सारे यजीदी कहते हैं, और याद रखना यजीदी करबला के मैदान में भी थे और यजीदी आज भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कल के यजीदी उन्होंने करबला के मैदान में हुसैन को तलवार से तकलीफ पहुंचाई थी, नेज़ों से तकलीफ पहुंचाई थी, फानों से तकलीफ पहुंचाई थी, और आज के यजीदी हुसैन पाक को नोके कलम से तकलीफ पहुंचा रहे हैं, नोके कलम से तकलीफ पहुंचा रहे हैं, नोके ज़बान से तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कोई कहता है कि मादल्ला हुसैन की जो लड़ाई थी वो इक़्तिदार की लड़ाई थी, हुसैन की जो जंग थी वो इक़्तिदार की जंग थी, हुसैन की जो लड़ाई थी वो शहजादों की लड़ाई थी। कोई कहता है यजीद पलीत अमीरुल मोमिनीन था, कोई कहता है यजीद खलीफा बरहक था, कोई कहता है कि हुसैन हक पर नहीं थे, यजीद हक पर था। तो बताओ ये जालिम इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नोके ज़बान और नोके कलम से तकलीफ पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? पहुंचा रहे हैं ना, पहुंचा रहे हैं। कल के यजीदियों ने करबला के मैदान में हुसैन पाक का पानी बंद किया था, और आज के यजीदी इमाम पाक की सबील बंद कर रहे हैं। इमाम पाक का दाना पानी बंद किया था, और आज के यजीदी हुसैन की सबीलें बंद कर रहे हैं, हुसैन के खिजरे बंद कर रहे हैं, हुसैन की नियादें बंद कर रहे हैं। मगर कसम खुदा की आज इतने हुसैनी है, इतने हुसैनी है कि आज भी हुसैन के नाम की सबीलें पिला रहे हैं, आज भी हुसैन के नाम पे खिजरे पका रहे हैं, आज भी हुसैन के नाम पे लंगर लुटा रहे हैं, और कहते हैं ए यजीदियों वो तुम हो कि तुमने हुसैन का पानी बंद किया। हम हुसैनी है, हुसैनी अपने आका हुसैन के नाम पे हम सबीलें पिला रहे हैं, अपने आका हुसैन के नाम पे हम खिजरे पका रहे हैं, अपने आका हुसैन के नाम पे हम नजरें पेश कर रहे हैं, अपने आका हुसैन के नाम पे हम सबीलें पिला रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है मेरे दोस्तों। तो आज ये कहते हैं कि ये बताओ अगर हुसैन के नाना के पास पावर था तो हुसैन को बचाया क्यों नहीं? बिला शक व शुबहा मेरे आका हुसैन के पास भी पावर था, उनके नाना जान रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी पावर था। इसीलिए तो जब आपने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया था तो डूबा हुआ सूरज पलट आया था, और जब आपने चांद की तरफ इशारा फरमाया था तो चांद का चांद दो टुकड़े हो गया था। पावर मेरे आका हुसैन के पास भी था, और मेरे आका हुसैन के नाना जान के पास भी था। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मगर आप एक बात बताओ, पूरी तारीख करबला आप उठा करके देख लो, इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत बचपन ही से मशहूर थी। हजरत फातिमा जानती थी कि करबला के मैदान में मेरा बेटा शहीद किया जाएगा। मौला अली सुभान अल्लाह जब जंगे सिफीन के मौके पर जा रहे थे तो आप करबला के मैदान से गुजरते हैं, और आपकी नजर जब मैदान करबला पे पड़ती है, जिस जगह पे इमाम अली मकाम के खेमे थे, जिस जगह पे इमाम अली मकाम की शहादत हुई, हजरत मौला अली ने जब उस जगह को देखा तो आप इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आपकी दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर हो जाती है। आपके साथी कहते हैं हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? आज लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं कहता हूं अरे जालिमों, नबी के गुलाम, जब अली के इल्म का ये हाल है कि अली आप पहले से बता रहे हैं, आज अली पहले से कह रहे हैं, ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहां पे मेरा बेटा हुसैन आएगा, इसके खेमे नस्ब किए जाएंगे, जहां पे मेरा बेटा हुसैन आएगा उसके खेमे नस्ब होंगे, मेरा बेटा हुसैन इस यहीं सी जगह पर उसका पानी बंद किया जाएगा, मेरा बेटा हुसैन उसका दाना पानी बंद किया जाएगा, उसके सामने अली अकबर की लाश उठेगी, उसके सामने औरो मोहम्मद की लाश उठेगी, उसके सामने अब्बास अलम परदार के बाजू कटेंगे, उसके सामने हजरत कासिम की नमाज़ी लुटेगी, उसके सामने अली असद
कैसर के हुकुम को छेदा जाएगा, उसके सामने आवानो अंसार की शहादत होगी। ये मौला अली पहले बता रहे हैं। मौला अली ने कभी दुआ नहीं की, नबी को इस बात का इल्म था मेरा बेटा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, मगर नबी ने कभी दुआ नहीं की ए मौला मेरे हुसैन को बचा ले। कभी फातिमा ने ये नहीं कहा ए मौला तू मेरे हुसैन को बचा ले, कभी अली ने नहीं कहा ए मौला तू हुसैन को बचा ले, बल्कि जब नबी दुआ करते थे तो कहा करते थे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रम व अजरा, ए अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को अजर अता फरमा, ए अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा, ए अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा। मेरे आका जानते थे हुसैन को कल मक्का मदीना छोड़ना पड़ेगा और मदीना छोड़ करके हुसैन को मदीना छोड़ करके हुसैन को मक्का जाना पड़ेगा। ए मौला हुसैन को सब्र अता फरमाना। सब्र किया है इमाम अली मकाम ने कि आपने मदीना जैसी सरजमीन को छोड़ दिया। मदीना जैसी सरजमीन को जब आपने छोड़ा, मदीना शरीफ को छोड़ा, अल्लाहू अकबर, हुसैन ने सब्र किया। ये बताओ वतन छोड़ना कितना भारी होता है इंसान को, कितना गिरा गुजरता है इंसान पे। लेकिन बताओ मेरे आका हुसैन आप मदीना छोड़ रहे हैं और ऐसी सरजमीन, ऐसी मुकद्दस सरजमीन जिसके बारे में आप यहाँ से दुआ मांगते हो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इलाही मदीने जाए फिर आए, मदीने फिर जाए, इसी में उम्र हम सब की तमाम हो जाए। मदीना की वो सरजमीन है जिसके बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं अल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यालमून, मदीना लोगों के हक में बेहतर है अगर लोग जानते। मदीना की वो सरजमीन है, आज जो हाजी गए होंगे उन हाजियों से आप पूछो जब मदीना शरीफ से वापस आते हैं और रोज़े रसूल से उनकी वापसी होती है तो मुड़ मुड़ करके वो रसूल के रोज़े को देखते हैं, ऐसे रोते हैं जैसे कोई अपने माँ की जुदाई में रो रहा हो, अपने बाप के प्यार में रो रहा हो। अल्लाहू अकबर, क्यों रो रहा है? इसलिए वो जानता है नबी का शहर छूट रहा है, नबी का मदीना छूट रहा है, सुनहरी जाली छूट रही है, गुंबदे खदरा छूट रहा है। और वक्त मुजद्दिद बरेली के इमाम जब मदीना से वापस आते हैं, मदीने की जुदाई का गम सताता है, आप उसको अशआर में यूं बयान करते हैं यादे वतन सितम किया दस्ते हरम से लाई को बैठे बिठाए पटना से उठाए तो और नुसरत काफिला का शोर हद से हमें उठाए तो सोए हैं उनके साए में कोई हमें जगाए तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दस्ते शहीद आजम, ताजदारे करबला, फैज़ाने करबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका इमाम अली मकाम मदीना जैसी मुकद्दस सरजमीन को छोड़ रहे हैं, मदीना जैसा वतन छोड़ रहे हैं और मेरे आका हुसैन सब्र कर रहे हैं। और जब मक्के की सरजमीन पे इमाम अली मकाम आने लगते हैं, जब मक्के के लोगों को पता चलता है कि मदीने की सरजमीन से मक्के की सरजमीन पे रसूल का नवासा आने वाला है, रसूल का नवासा आने वाला है, खातून जन्नत का शहजादा आने वाला है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, सब लोग खुशियों में झूम रहे हैं। मदीने की औरतें अपने बच्चों को लोरियां दे दे करके कह रही थी आए बच्चों अब रसूल का पैकर मक्के की धरती पे आने वाला है। जब तुम हमसे पूछते थे ए मेरी माँ ये बताओ रसूल कैसे मुस्कुराते थे तो हम तुम्हें कुरान से बताते थे, हम तुम्हें हदीस से बताते थे। जब तुम हमसे पूछते थे हम तुम्हें कुरान से बताते थे, हम हदीस से बताते थे। जब तुम हमसे पूछते थे रसूल कैसे कलाम फरमाते थे तो हम तुम्हें कुरान से बताते थे, हदीस से समझ बताते थे। मगर ए मेरे लालो अब रसूल का पैकर मक्के की धरती पे आने वाला हो। जब हुसैन आएंगे और चलेंगे तो हम तुमको बताएंगे रसूल ऐसे चलते थे, आएंगे और बोलेंगे तो हम तुमको बताएंगे रसूल ऐसे बोलते थे। जब हुसैन खाएंगे तो हम तुमको बताएंगे रसूल ऐसे खाते थे। जब रसूल हुसैन खिताब फरमाएंगे तो हम तुमको बताएंगे हुसैन रसूल पाक ऐसे खिताब फरमाया करते थे। ऐ लोगों मक्के की सरजमीन पे, ऐ मेरे लालो मक्के की सरजमीन पे रसूल का पैकर आने वाला है। हुसैन पाक मक्का आते हैं, मक्का में परेशानियां हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। मक्का छोड़ करके अब मुतअद्दिद मकामात को पार करके करबला के मैदान में आते हैं। हुसैन पाक सब्र करते हैं। 7 मुहर्रम की तारीख को इमाम पाक का पानी बंद किया जाता है, हुसैन सब्र करते हैं। आपके सामने 10वीं मुहर्रम को जब एक एक की शहादत होती है, उनकी शहादत हो रही है, हुसैन सब्र कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी की शहादत हो रही है, हुसैन सब्र कर रहे
سب کو قربان کر دیا, بچہ قربان کر دیا, جوان قربان کر دیا, عوام و انصار کو قربان کر دیا. اب دیکھو میرے آقا حسین کربلا میں آتے ہیں. ایک بات بتاؤ, اور یزیدیوں کے سامنے پہنچتے ہیں. ایک نقطے کی بات, اگر کسی کا پورا خاندان کہیں پہ قتل ہو جائے, مار دیا جائے, تو آپ کیا کرو گے؟ اللہ, جب میرا بیٹا نہیں رہ گیا تو اب ہم رہ کے کیا کریں گے؟ جب میرا بھائی نہیں رہ گیا تو ہم رہ کر کے کیا کریں گے؟ جب ہمارے خاندان کے لوگ نہیں رہ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ مگر واہ رے میرے آقا حسین, آپ کی عظمت و استقلال کو, صبر کو سلام. کربلا کے میدان میں ایک کے بعد دیگرے سب جہاں میں شہادت پی لیا کرتے ہیں, تو میرے آقا حسین پھر بھی جب یزیدیوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں, اے یزیدیوں دیکھو میں کون ہوں. اے یزیدیوں کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا ہے, حسین منی و انا من الحسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا, جو حسین کا دشمن ہوگا وہ میرا دوست ہوگا. اے یزیدیوں کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس رسول نے ارشاد فرمایا ہے, آج جو ہے میرے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اے یزیدیوں یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں خاتون جنت کا لال ہوں, وہ خاتون جنت. ارے جب کربلا, جب میدان قیامت میں 70,000 حوروں کے بیچ سے جھرما سے جب آپ پل صراط سے گزریں گی تو پردے کے اہتمام کا یہ حال ہوگا. اے محشر والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو, فاطمہ گزر رہی ہے, رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے. کیا تمہیں پتا نہیں ہے میں اس علی کا لال ہوں جس علی نے در خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ابن فلاں ہوں؟ بتاؤ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, امام علی مقام اتمام حجت کر رہے ہیں, یزیدیوں کو بار بار سمجھا رہے ہیں. میں نے عالم تصور میں اپنے آقا حسین سے پوچھا, اے میرے آقا حسین آپ کو تو لڑنا چاہیے کیونکہ آپ کا بھتیجا بھی قربان, آپ کا بچہ بھی قربان, آپ کے ساتھی بھی قربان, سب قربان ہو گئے, مگر ان یزیدیوں کے سامنے آپ اتمام حجت کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے آقا حسین کہتے ہیں, اے میرے غلام سن, اے میرے عاشق سن, میں کریم ابن کریم ہوں, ابن سخی ہوں. میں یزیدیوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اے یزیدیوں اگر تم نے حور کو مار دیا ہے کوئی بات نہیں ہے, قاسم کو مار دیا ہے کوئی بات نہیں ہے, ابو محمد کو مار دیا ہے کوئی بات نہیں ہے, علی اکبر کو مار دیا ہے کوئی بات نہیں ہے. اے یزیدیوں اگر تم آج بھی توبہ کر لو اور جرم سے معافی مانگ لو تو حسین آج بھی تمہاری خطا معاف کر دے. واہ واہ واہ, بات ہے, کیا بات ہے. آج بھی تمہاری خطا معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا صبر بتاؤ کوئی کر سکتا ہے؟ امام پاک سمجھا رہے ہیں, سب کچھ لٹ گیا حسین کا. بالآخر امام پاک نے اپنی قربانی بھی کربلا کے میدان میں پیش کر دی, لیکن آقا حسین نے صبر کیا. عزیزان ملت اسلامیہ, امام پاک نے ایسا صبر کیا, ایسا صبر کیا, ایسا صبر کیا کہ آج امام الصابرین بن گئے. اور انہیں اجر کیا ملا اے مسلمانوں؟ آج دیکھو گلی گلی حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے, محلہ محلہ حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے, شہر شہر حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے, قریہ قریہ حسین کا تذکرہ کر رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت لے کر کے یزید اور یزیدیت کو ایسا مار دیا ہے, ایسا مار دیا ہے کہ قیامت تک کوئی یزیدی سر نہیں اٹھا سکتا ہے. آج کا دور بھی دیکھ لو, ارے کوئی کتنا بڑا یزیدی کیوں نہ ہو, مگر میرے آقا حسین کی ہیبت ایسی طاری ہے, ایسی طاری ہے کہ بچہ اس کے گھر میں پیدا ہو تو ہمت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دے, ہمت نہیں ہے کہ اپنے اس کے یزید کے نام پہ کوئی محفل کر دے, کوئی ذکر کر دے, کوئی تذکرہ کر دے. میرے آقا حسین کی ہیبت آج بھی طاری ہے. اور ایک بات اور بتاؤ, ارے یزید کے مرنے سے پہلے پہلے بہت سارے یزید نام کے لوگ پائے جاتے تھے, مگر یزید کو ایسا مارا حسین نے کہ یزید کے بعد اب کوئی یزید نہیں, لیکن حسین کی شہادت کے بعد حسین کو وہ اجر ملا, وہ اجر ملا, وہ اجر ملا کہ آج بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہو مگر اپنے بیٹے کا نام حسین رکھتے ہیں. کوئی احمد حسین رکھتا ہے, کوئی حسین رکھتا ہے, کوئی حسین رکھتا ہے, کوئی مصطفیٰ
زندہ میرا امام ہے. اللهم صل على سيدنا ونبينا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. حضرات توجہ کے ساتھ بس ایک بات میں آپ کو بتاؤں. جتنے لوگ آج یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں, خلیفہ برحق کہتے ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں, نسائی میں یزید کی فضیلت میں کوئی حدیث دکھا دو, نہ ملے گی. نہیں ملے گی حضرت. ہاں ایک جگہ میں نے پڑھا, صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا. یہ ابو درداء ایسے صحابی ہیں, ذرا ان کی محبت دیکھیے. ان کے ایک صاحبزادے تھے, صاحبزادے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جس طرح کی حرکتیں دیکھتے ہیں بچے اس کی نقل کرتے ہیں. آپ کے بچے اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے نماز کی نقل کریں گے. اگر وہ دیکھتے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی نقل کریں گے. آپ کے بچے دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں گانا گایا جا رہا ہے تو بچے اسی چیز کی نقل کریں گے. جیسا دیکھیں گے ویسا کریں گے. تو صحابی رسول کے بیٹے تھے, گھر کا ماحول دیندار تھا, وہ دیکھتے تھے کہ اذان کی صدائیں سنائی پڑتی ہیں تو ایک جگہ کھڑے ہو کر کے کہیں اذان کی نقل کر رہے تھے. مصطفیٰ جان رحمت ادھر سے گزرتے ہیں, جب دیکھتے ہیں تو بچے پہ پیار آ جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت اس بچے کے قریب جاتے ہیں اور اپنا دستے مبارک, وہ دستے مبارک جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ہاتھ جس سمت غنی کر دیا مجھے پہلے سماعت پہ لاکھوں سلام. اپنا دستے مقدس اس بچے کے سر پہ رکھ دیا. اللہ اکبر. تو اب ذرا اس صحابی کی محبت دیکھو. صحابہ کس قدر اپنے نبی سے پیار کرتے تھے, اپنے نبی سے محبت کرتے تھے, اپنے نبی سے کس قدر لگاؤ رکھتے تھے. نبی کے چہرے کو دیکھنا وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, نبی کی دید ہوتی تھی. اللہ اکبر. اب وہ صحابی, ان کی عقیدت دیکھو, ان کی محبت دیکھو. جب بال کٹوانے کے لیے وہ نائی کی دکان پہ لے کر کے جاتے تھے تو جہاں پہ مصطفیٰ کے دستے مقدس پڑے تھے اس بال کو چھوڑوا دیا کرتے تھے. اے حجاج اس بال کو مت کاٹنا کیونکہ وہاں پہ مصطفیٰ کے مقدس ہاتھ لگے ہیں. بات ہے, کیا بات ہے, زندہ باد. صحابی کی یہ محبت ہے, ذرا دیکھو. ہائے ہائے, محبت ہے. کہتے ہاتھ لگ گیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے لگے ہوئے ہاتھ پہ جہاں پہ پڑے ہیں اس بال کو مت کاٹنا. یزیدی کتنے بد کردار تھے جنہوں نے صدر الشیاطین, فتنہ اعظم, کم ظرف, کم نظریہ, بد باطن, بد خلق, بد اتوار, ناہنجار, بے وقار, ذلیل و خوار یزید پلید کے حکم سے مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادوں کے حلقوم پہ تیر چلایا, تلوار چلائے. جن لبوں کو, جن گلوں کو مصطفیٰ جان رحمت سونگا کرتے تھے, چوما کرتے تھے. واہ واہ واہ. محبت کی بات ہوتی ہے پیاری. تو ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا, اولو من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید. میری امت کا پہلا شخص مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میری سنت کا تبدیل کرے گا وہ بنی امیہ کا ہوگا, اس کا نام یزید ہے. کیا بات ہے. میری سنت کا تبدیل کرنے والا پہلا شخص وہ بنی امیہ کا ہوگا جس کا نام یزید پلید ہے. یزید پلید کب پیدا ہوا؟ 25 ہجری میں. اور مصطفیٰ جان رحمت پہلے ہی بتا رہے ہیں. وہاں بھی کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوگا تو ایسا ایسا ہوگا اور میری سنت کو تبدیل کرے گا. بریلی کے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کا, اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور سرکار شیر بے شعر سنت فرماتے ہیں, یا رسول اللہ ہے تیرا تصور تو
मुसलमानों का ईमान। मेरी आवाज बहुत डिस्टर्ब है, वरना रफीक फैजी साहब ने कहा था कि हजरत कुछ पढ़ लीजिएगा, मगर चूंकि मुसलसल बोलने की वजह से कहीं 1.5 घंटा बोलो, कहीं 1 घंटा बोलो, कहीं 2 घंटा बोलो, आवाज बहुत मुतासिर है। बहरहाल चलिए समाज कीजिए, बहरहाल शेर सुन लीजिए, बस हमारी आवाज मत देखिए, शेर समाज कीजिए। हाँ शेर में शेर सुनत फरमाते हैं, तेरा तसव्वुर तो मुसलमानों का ईमान और कल्ब में नजदीक बसा गाँव भी खर भी और कल्ब में नजदीक बसा गाँव भी खर भी। तो नबी का इल्म गायब है, ये नबी कब बता रहे हैं जबकि यजीद पली नबी पैदा नहीं हुआ है, और ये तो मेरे नबी की बात है। आओ मैं आपको बताऊं, सुनो। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे जिनका नाम था अबू हुरैरा। अबू हुरैरा के बारे में आपने बारहा सुना होगा। हजरत अबू हुरैरा से बेशुमार हदीसें मुस्तफा जाने रहमत से रवायत है, इसलिए कि अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं कि मेरे और साथी जो सहाबा थे उनके पास वक्त नहीं हुआ करता था, टाइम नहीं हुआ करता था, और वो कुछ वक्त के लिए बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुआ करते थे। लेकिन अबू हुरैरा कहते हैं मेरी हालत ये थी, मेरी कैफियत ये थी कि मैं सुबह जब आका की बारगाह में आता तो सुबह से लेकर मैं शाम तक बारगाह मुस्तफा में बैठा रहता था। जो हदीसें बयान किया करते थे मैं उन हदीसों को याद कर लिया करता था। एक मर्तबा मेरा कुव्वत हाफिजा कमजोर हो गया, मैंने अपने आका की बारगाह में दुआ की, कहा है मेरे आका आप दुआ फरमा दीजिए, मेरा कुव्वत हाफिजा बड़ा कमजोर हो गया है। नबी ने ये नहीं शाद फरमाया, ए अबू हुरैरा तुम डॉक्टर के पास जाओ, तबीब के पास जाओ, तुम हकीम के पास जाओ, क्योंकि अबू हुरैरा के नबी का अकीदा ये था कि मैं सेहतयाबी दे सकता हूँ, मैं इसको शफायाब कर सकता हूँ। और अबू हुरैरा का अकीदा भी ये था कि इज्जत नबी के घर से मिलती है, दौलत नबी के घर से मिलती है, शोहरत नबी के घर से मिलती है, सब कुछ नबी के घर से मिलती है, तो वकार भी और ये शफा भी मुझको नबी की बारगाह से मिलेगी। इसलिए दोनों का अकीदा ये था कि नबी का अकीदा था मैं दे सकता हूँ, सहाबा का अकीदा ये था कि नबी दे सकते हैं। और जिसका अकीदा नबी और सहाबा के अकीदे से मिल जाए वही जन्नती मुसलमान हुआ करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा ये है कि नबी मुख्तार है, और नबी का अकीदा ये है कि मैं मालिक को मुख्तार हूँ, और सहाबा का अकीदा भी है कि नबी मुख्तार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब की बिलावरी, अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब की बिलावरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बैठ जा जल्दी बैठ। हाँ अबे ऊपर कहाँ बैठा होकर लाइट आप हजरत तशरीफ रखें और अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा फरमाएं। खतीब दौरा नाशिर मसलक आला हजरत उम्दतुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला अज़हरी वस्ताद दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल बराउ शरीफ वो तशरीफ फरमा है। हुजूर वाला के बयान से अभी आप तमामी हजरात को मुस्तफीज होना है। बस अब चंद लम्हे के लिए आप हजरात और तशरीफ रखें, मेरी चंद बातें आप समाप्त कर लें और उसके बाद कमाल होता है लाइट जलाते थे दरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलाम ने क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो नबी का इल्म गैब है। नबी के सहाबी अबू हुरैरा आप बयान फरमाते हैं कि मेरा हाफिजा जब कमजोर हुआ तो मैं बारगाह मुस्तफा में गया, आका से मैंने अर्ज की मेरे आका मेरा कुव्वत हाफिजा कमजोर हो गया है। नबी ने फरमाया अबू हुरैरा चादर फैलाओ, चादर फैलाई। मुस्तफा ने अपना जो है हाथों का चुल्लू बना करके आका ने उनके चादर में डाल दिया। फरमाया अबू हुरैरा इसको सीने से लगा लो। जब सीने से लगाते हैं तो अबू हुरैरा के इल्म का ये हाल हो जाता है कि जब नबी की कोई भी हदीस सुना करते थे तो भूला नहीं करते थे। 8,000 से ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी है।
क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। हुरैरा, उनका इल्म जरा देखो। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन रासिस दीनी व इमारतिस सिबियान। आप दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह मैं सन 60 के आगाज और लौंडों की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता। अल्लाह। आप जानते थे 60 हिजरी में यजीद पलीद बादशाह बनेगा और इसकी हुकूमत जब होगी तो ये बदतमीजियां करेगा। अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह इससे पहले कि वो जालिम आए मुझको दुनिया से उठा ले। तो सन 59 हिजरी में हजरत अबू हुरैरा का विसाल हो जाता है। ये इल्म है नबी के गुलामों का। अरे जब भी वो निके कदा भले देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। तो यजीद की फजीलत में एक हदीस नहीं दिखा सकते, लेकिन हुसैन पाक की फजीलत में आपको बार बार मिलेगा। कहीं नबी इरशाद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन फकना शबाब अल जन्ना, हसन और हुसैन मेरे दोनों नवासे जन्नती जवानों के सरदार है। कहीं नबी इरशाद फरमाते हैं मेरे नवासे हुसैन उम्मी बाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। कहीं मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं हुमा रेहानी मिनत दुनिया, मेरे दोनों नवासे ये दुनियावी फूल है। कहीं मुस्तफा चूमते हैं, कहीं मुस्तफा सूंघते हैं। बारहा आपको हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन के बारे में नबी की हदीसें आपको मिल जाएंगी, मगर यजीद पलीद के बारे में आपको कोई हदीस ना मिलेगी उसकी फजीलत में। सच्चे बिना वजह उसको बख्शा बख्शाया जन्नती साबित करने की लोग नापाक कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ उनके पास एक हदीस है। उस हदीस का सहारा लेकर के वो लोगों को गुमराह करते हैं कि देखो इस हदीस से साबित हुआ कि यजीद बख्शा बख्शाया जन्नती है। बस यही बात बता के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। हजरत तशरीफ फरमाए, तवज्जो के साथ समाप्त फरमाए। वो है हदीस कुस्तुनतुनिया। क्या है? हदीस कुस्तुनतुनिया। हदीस कुस्तुनतुनिया सही है, बरहक है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा वो बख्शा बख्शाया जन्नती है। लोग कहते हैं कि यजीद ने क्योंकि कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पे हमला किया इसलिए बख्शा बख्शाया जन्नती है। तो अब सुनिए हमारे उलमा ने जो उसका जवाब दिया है वो क्या जवाब दिया है। यजीद पलीद ने जब कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पे हमला किया तो उसके बारे में 4 रिवायतें मिलती है। 49 हिजरी में या 50 हिजरी में या 52 हिजरी में या 55 हिजरी में, लेकिन उससे पहले सन 47 हिजरी में हजरत अब्दुर्रहमान ने कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पे हमला किया था। जिस जमात में जिस गिरोह में यजीद पलीद शरीक नहीं था, तो बताओ बख्शा बख्शाया जन्नती वो कैसे हो सकता है। हदीस पर हक है मगर पहले गिरोह में वो शामिल नहीं था इसलिए बख्शा बख्शाया जन्नती नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई बार बार उसको जन्नती साबित करने की कोशिश करे तो ए सुरहिया और हुसैनी कमेटी के लोगों, ए नौजवानों, ए वे साथियों, ए नई रामपुर और पूर्वा जमात से आए हुए मुसलमानों, जब कोई यजीद को जन्नती बताने की कोशिश करे, बख्शा बख्शाया साबित करने की कोशिश करे तो झगड़ा मत करना, लड़ाई मत करना, इख्तलाफ मत करना, गिरेबान मत पकड़ना, बल्कि अपने हाथ को उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, ए मौला जहां यजीद पलीद जाए वहां यजीद के दलाल को भेज दे, जहां यजीद पलीद जाए वहां यजीद के एजेंट को भेज दे, जहां यजीद जाए वहां यजीद के हिमायती को भेज दे, और जहां मेरा हुसैन जाए हम गुलामों ने हुसैन को भेज दे, रखे हुसैन को भेज, उस हुसैन के चाहने वालों को भेज दे, वही पाने अहले पाक को भेज दे। तो मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं
आगे खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। हुसैन आदम तुम्हारी शहादत को सलाम, हुसैन आदम तुम्हारी इमामत को सलाम, हुसैन आदम तुम्हारी क़यादत को सलाम, हुसैन आदम तुम्हारी शुजाअत व जवामर्दी को सलाम। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, ज़मीन ताज का जर्रा सलाम कहता है, ज़मीन ताज का जर्रा सलाम कहता है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह मेरे बोले हुए जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरे बोलने में बतकादाए बशरियत कोई गलती हो, कोई खता हो, मौला इसे माफ फरमा। हम तेरे तमाम बंदों को गवाह बनाकर तौबा करते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत दिल में जीन पाओ, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। कफरे वहाबियत हो कि ऐवाने नज़ियत, सब तहस नहस हो कि धमाका रज़ा का है, सब तहस नहस हो के धमाका रज़ा का है। बस एक नारा मेरे साथ लगा ले बेदारी के साथ, बात खत्म। नारा लगाएंगे? अरे फैजी साहब सिर्फ नारा लगाना नहीं जानते, मैं भी जानता हूँ। अरे वाह लगाएं नारे तकबीर। सद्दाम साहब को सुनना है, हजरत को सुनना, मुफ्ती साहब को, इसलिए बेदारी का माहौल पैदा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह,